Hello everyone, my name is Sarita. I'm from Bangalore and I'm an astrologer. I am teaching this KP astrology past 10 years and I have brought for you all a very exciting webinar presentation. So just I welcome you all in this presentation. May I know in the chat box how many are already astrologer, Vedic astrologer or anyone who has basic idea. Please type your name and your place, from which place you belong to in a chat box. Oh, so many of them are here. So I can see so many are here who is Vedic astrologer and KP astrologer or tarot reader also have joined. So I'm very happy and excited to do this presentation with you all. So everyone, first of all, once again, I welcome you all. You all are action taker for taking this great decision for joining my KP Astrology Mastery webinar. And you all are great learner, I'm sure. And by attending this 90-minute webinar, you will definitely get some amazing learning about KP Astrology industry. I am very sure for that. So I have already told you I'm from Bangalore and expertise in KP astrology. For Arya prediction also, I have done and Gulberg Fortuna theory. So how learn in this KP Krishna Padati astrology, your accurate birth prediction and life events by KP astrology in just 15 days that we will come to know very soon. How to do Horary prediction, you will learn how to do Goldberg and Fortuna theory से कैसे predict करते हैं वो आप सीखोगे मेरे कोर्स ज्वाइन करने के बाद. And in this webinar presentation, my main aim is to mission empowerment is that change the aspect of society that towards astrology people have thinking that this is uh, like andhavishwas. People think that this is superstitious thing. So it's not superstitious. It is totally logical and mathematically based. And I want to create right awareness towards society also and towards our student also about this KP astrology. So I am doing this workshop in this everyone whoever has joined, जो भी join किया है, they should do complete focus and dedicated towards this course. Then only you will learn something and keep all distraction away after analysis. If you have doubt, you can ask in that. Don't keep your any doubt in your mind. And we will give you after this presentation 10 bonuses, which is absolutely free of cost if you join my course. So I will guarantee you if you implement all these, learning KPSL seriously, it will show your effort and earnings to you. So I know that if you join and learn my course, you will definitely learn something and you will try to achieve your goal also. If you want to grow as a business you want to do with this course, you can do that also, and you can earn easily. Or if you want to help society, for that it is very good idea because it will not take so much time like Vedic astrology. In that so many theory you have to learn for that. You have to keep in mind also, and that also accurate birth prediction never comes. But in this, only by knowing the numbers, you can say correctly, accurate, which day, which date, which place, which time that event will happen. So it is very much good and accurate. It gives 100% good and
correct result. So, what you are going to learn in this master class? Sublot theory. In this sublot theory, KP Nakshatra Siddhant, this is, in this you will learn how that Nakshatra Lord and Sublord has been divided into from 27 to 9 parts and it is giving results. भाग्य बिंदु सिद्धांत से आप प्रिडिक्ट करना सीखेंगे, जिसको फॉर्च्यूनर पॉइंट थ्योरी भी कहते हैं। बोरा विज्ञान से भी आप प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। विमशोत्री का प्रयोग कैसे करते हैं, भास्करम सूक्ष्म दशा क्या है, भास्करन भाव और दशा पद्धति ये क्या है और इससे कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, वो आप सब सीखोगे मेरे कोर्स में। पहले आप लोग जान लीजिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है। ये कृष्ण मूर्ति जी ने ये बनाया था, ये पद्धति। केपी सिस्टम एक एडवांस और प्रिसाइज मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो डेवलप किया है गया है प्रोफेसर लेप के एस कृष्णमूर्ति द्वारा। ये टोटली ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम पे बेस्ड है, but incorporates a unique stellar based approach that makes prediction more accurate and time specific. यूनिक इसका मेथड होता है, ये कोई थियोरेटिकल बेस्ड नहीं है, लॉजिकली एंड मैथमेटिकल नंबर्स के बेसिस पे है, सो इट इज वेरी यूनिक। विद इन अ सेकेंड यू कैन से that what is the event and when it will going to happen. That's why it is very unique. Why KP astrology? So many may be thinking that why KP astrology when we have Vedic astrology and we have tarot reading, we have so many other options. Because it gives you more precise than traditional astrology. In traditional, you will see a lot of theory. For each houses, there is a big summary and notes we all have to learn. In this, nothing, no summary, no too much, but you have to learn the KP chart. That is also some few numbers related to events, and you will be able to do within a second. After doing this webinar presentation, I know so many will understand the concept of this KP astrology और आप आराम से कर पाओगे, मुझे पता है ये। So ideal for quick and specific prediction, जैसे आप ये बता पाओगे कि उनकी मैरिज होगी कि नहीं, उनका करियर अच्छा होगा या नहीं, उनकी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी, आप तुरंत बता दोगे। हाईली इफेक्टिव फॉर होरारी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न कुंडली। और अगर होरारी एस्ट्रोलॉजी आप यूज करते हो, केपी एस्ट्रोलॉजी में ही आता है, तो उसमें प्रश्न पूछकर उस टाइम का प्रश्न हम लेकर भी उस डिटेल्स को उस समय का डाल के आराम से बता पाते हैं कि क्या होने वाला है। ये ज्यादा एक्यूरेट आता है रिजल्ट्स में। एंड लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसमें कोई गलती नहीं होती है। अगर 1+1 है तो 2 ही आएगा, 3 नहीं हो सकता। मैंने ये केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स क्यों किया, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो मैं एस्ट्रोलॉजर ऐसे बन गई कि मुझे जानना था अपने बारे में। तो जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी तो मुझे बाय बर्थ ही बहुत एस्ट्रोलॉजी का शौक था। तो जब मुझे बेबीज नहीं हो रहे थे, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, फिर मुझे जॉब भी अच्छी नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखना चाहिए जिससे मैं अपने बारे में जान पाऊँ और अपनी लाइफ को बेटर बना पाऊँ। तो जब मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीखा तो मुझे पता चला कि कुछ रेमेडीज करने होते हैं जो बहुत ही इजी थे। ओनली 5 मिनट्स 10 मिनट्स के रेमेडीज होते हैं जो आप डेली बेसिस पे अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के आराम से कर सकते हो, सोने के टाइम में और कभी भी, जो मंत्रा बेस्ड होते हैं। और उसमें कोई स्पेशल चीज करना नहीं होता है, सिर्फ चैंटिंग होती है, जिसको करके मैंने वो सब कुछ लाइफ में हासिल किया जो मुझे नहीं मिल पा रहा था। जैसे मुझे रेमेडीज करने के बाद मेरे हस्बैंड भी सुधर गए, मुझे बेबी भी हुआ,
और ये सब आप एक स्टोरी, ये डिफॉल्ट मत समझना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरा यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन भी बन गया कि जो अब मैं बोलती हूँ वो सब मेरा पूरा होता है। So I'm very, very much very happy because KP astrology course have helped me in guiding my life in so many ways. So आप लोग सीखोगे। So let's jump into KP chart and let's understand. KP chart में सबसे पहले तो आपको ये बोर्ड पे कुछ मैरिज सेवेंथ हाउस के बारे में बताऊंगी कि टोटल आप देखोगे ये एक चार्ट है और इसमें मैरिज के नंबर सारे 7 to 11। तो जनरली हाउसेस टोटल 12 होते हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ, जिसमें सेवेंथ हाउस को आप देखो, वैवाहिक वैवाहिक व्यापार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सेवेंथ हाउस जो है, तो इसमें जो ये सेवेंथ हाउस है, ये वाला, तो इसमें आप देख रहे हो कि वैवाहिक और व्यापार लिखा हुआ है। तो इसमें आप, ये सेवेंथ हाउस हमारा हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 12 हाउसेस हैं। तो फर्स्ट हाउस हो गया आपका, आपके बारे में, आपका रंग कैसा होगा, आपका रूप कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, आपका पर्सनालिटी कैसी होगी, हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और ये सेकंड हाउस से हम कुटुंब और वाणी और धन को देखते हैं। आज हम टोटल डिस्कस तो नहीं करेंगे, सिर्फ सेवेंथ हाउस को हम देखेंगे, जो है वैवाहिक और व्यापार। सेवन से हम मैरिज लाइफ भी देखते हैं, सेवन से हम व्यापार बिजनेस भी देखते हैं। तो अभी आपको मैं बताऊंगी। इसके बारे में, सेवेंथ हाउस के बारे में, सेवेंथ हाउस में अगर किसी की शादी होगी कि नहीं, तो सिर्फ हम बस इतना ही देखेंगे कि 7 to 11 ही नंबर है और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। सिर्फ 7 to 11 आपके कुंडली के नक्षत्र नारी में अगर है तो शादी 100% होगी। अब इसमें जो सीक्वेंस है 7 to 11, 7 आया तो 100% शादी होगी। मान लीजिए 7 नहीं आया और 2 11 भी आया तो भी शादी होगी, इवेंट प्रॉमिस होती है। तो अभी ये 2 और 11 भी सपोर्टिव नंबर है मैरिज के लिए, तो शादी होगी। अब हम देखेंगे नक्षत्र नारी में, अगर हम किसी की कुंडली खोलेंगे, नक्षत्र नारी ऐसे खुलेगा, तो उस नक्षत्र नारी में हम देखेंगे, आप देखिए कि इसमें 7 to 11 कहीं पे आ रहा है, तो आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, मुझे बताइए कि इसके चार्ट में, इसके नक्षत्र नारी के चार्ट में 7 to 11 आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो गुरु में आ रहा है 7 to 11, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ यहाँ पे 7 है,
यहाँ 7 है, यहाँ 2 है और यहाँ 11 है। तो हम कह सकते हैं कि गुरु के परिवार में 7 to 11 है। तो जब गुरु दशा इस जातक की चलेगी तो 100% इसकी शादी होगी। लेकिन 211 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और 11 यहाँ पे भी दिख रहा है, 11 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 और ये 11 है, 2 है यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो केतु की दशा में 211 आ रहा है और शुक्र की दशा में भी सिर्फ 2 आ रहा है, मंगल की दशा में सिर्फ 11 आ रहा है। तो ये सब में आप कह सकते हो कि 60-50% चांसेस होंगे। पर जब गुरु की दशा होगी और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि शुक्र की दशा होगी तो 100% शादी होगी, क्योंकि इवेंट प्रॉमिस हो रहा है। अब उनकी एज अभी क्या है उससे कोई मैटर नहीं होता है, वो 20+ हैं और उनके लिए अगर लड़का या लड़की ढूंढा जा रहा है तो अगर उनका गुरु दशा चल रहा होगा उस समय, जो हम दशा में चेक करेंगे, तो आप अभी बस इतना सीखो कि इस चार्ट में उनकी शादी है कि नहीं। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर इस जातक के कुंडली में 7 to 11, इस चार्ट को देखो, इस केपी चार्ट को देखो, मैरिज के लिए क्या है 7 to 11। तो 7 to 11 था, शादी होगी कि नहीं? तो शादी इस जातक की जरूर होगी, गुरु की दशा में होगी, मंगल की दशा में होगी, शुक्र की दशा में होगी, केतु की दशा में होगी और सूर्य की दशा में होगी। बुध की दशा में नहीं हो सकती है, शनि की दशा में नहीं हो सकती है, ना ही 2 है, ना ही 7 है, ना ही 11 है, यहाँ तक कि राहु की दशा में भी होगी। अब एक और चीज सीखना है कि यहाँ पे 7 to 11 तो आया, लेकिन अगर हम जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं 7 to 11, तो 7 to 11 के जो 12th नंबर होते हैं कुंडली में, जैसे 7 से अगर आप काउंट करोगे 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 6। तो अगर इस हाउस को आप देखो, 7 से अगर आप 12 हाउस काउंट करोगे, 7 को छोड़कर यहाँ से काउंट करोगे 1, यहाँ से 8 से काउंट करोगे 1, यहाँ से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर सॉरी 7 से ही आपको काउंट करना था, तो 7 से अगर आप काउंट करते हो तो 6 तक आने में, ये आपका 12th हाउस हो गया। अब 12th हाउस हो गया तो 6 नंबर जब भी किसी जातक के नक्षत्र नारी में आएगा, और हम ये भी देखेंगे कि 2 से 7 to 11 था, 2 से 12 तक काउंट करेंगे तो उसका
ट्वेल्थ नंबर होगा 1। जैसे आप यहाँ से काउंट करोगे तो 2 से काउंट करेंगे हम ट्वेल्थ हाउस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 आएगा। तो 1 निगेट करने वाला नंबर हो गया। अब 1 6 हो गया, और 11 से हम ट्वेल्थ देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा। अब ये नंबर है क्या? 6 1 2 का ट्वेल्थ 1 हो गया, 7 का ट्वेल्थ नंबर 6 हो गया, और 12 का 11 का ट्वेल्थ नंबर 12 ही हो गया। तो अभी 1 6 और 12 अगर इस जातक के नक्षत्र नारी में आएगा तो इस जातक को उसके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ये तो जान लिया कि इन जातक की शादी होगी कि नहीं। तो हाँ, इस जातक की शादी होगी। अब ये देखना कि इस जातक की शादी हैप्पी रहेगी या फिर प्रॉब्लम वाली रहेगी। तो जब हम देख लिए कि 1, अब इस जातक के नक्षत्र नारी में आपको देखना है कि 1 6 और 12 कितने बार आई है, किस दशा में आई है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, इसमें भी 1 1 6 आ गया, इसमें भी 6 6 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें भी 6 आ गया और 1 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, 1 आ गया 2 बार, 12 भी आ गया, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, 6 आ गया और 1 आ गया और 1 आ गया, फिर यहाँ पे भी 6 आ गया, 12 1 आ गया, और यहाँ पे भी 6 आ गया, 1 आ गया 2 बार। अब इस जातक की कुंडली में आपको ये देखना है कि 7 नंबर कितने बार आया है और 6 नंबर कितने बार आया है। आप देखिए, यहाँ 7 सिर्फ एक ही बार है, और 6 आया है इसमें 2 बार। सूर्य की दशा में 1 2, इस चंद्र वाले में 3, मंगल वाले में भी 2 मोर तो हो गए 5, इसमें 6, और इस शुक्र में एक और है तो 7, और राहु में एक और है तो 8, और केतु में 2 बार है तो 10। अब जिस जातक की शादी में पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक बार हो 7, और निगेटिव 6 नंबर आ गए 8 टाइम्स, उसमें 1 भी है फिर 11 भी है, तो आप कह सकते हो कि इस जातक की मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं रहेगी और इनको उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि 2 आया है आपको कितने बार, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 टाइम्स आया है 2। अब देखिए निगेटिव नंबर 1 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 टाइम्स आपको आया है 1, और 2 आया है 3 5 6 7 8 9 10 11।
ऑलमोस्ट आप देखिए कि 9 टाइम्स और 11 टाइम्स कोई खास डिफरेंस रखता नहीं है। तो नेगेटिव नंबर अगर थोड़ा भी कम है पर ऑलमोस्ट 90% है, तो आप नेगेटिव ही मान के चलिए कि इस जात तक की मैरिज लाइफ सही नहीं रहेगी। मनमुटाव रहेंगे, झगड़े रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो इनको आप कह सकते हो कि रेमेडीज करना पड़ेगा मैरिज लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और रेमेडीज के लिए आपको मंत्र बताना पड़ता है, जिसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। शांत मुद्रा में बैठ जाए पासी मार के। करने का तरीका तो अभी हम नहीं बताएंगे। आ, सिर्फ रेमेडीज आप जान लो कि अनाहत चक्र को एक्टिवेट अगर कर देते हैं ये, तो फिर इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर इनके मन में इतना प्यार आ ही जाता है कि आप दूसरे से ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग कर पाते हो और ना ही झगड़ा कर पाते हो। इतना पावरफुल होता है क्योंकि आप अपने चक्रा को बैलेंस कर लेते हो। तो आप ये देखो, अनाहत चक्र मंत्र का महत्व ये मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है। इस मंत्र का उच्चारण करने से मानसिक शांति और दूसरों के लिए प्यार और खुद के लिए प्यार बढ़ जाता है। तो आप जब इस मंत्र को यम है, यम यम इस तरह से करना होता है, शांत वातावरण में बैठ के। तो आप जब ये करते हो डेली, तो 21 डेज में ये एक्टिवेट हो जाता है ऑलमोस्ट 80%। और आपका जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और जितने भी लाइफ में इशू आ रहे हैं मैरिज को लेकर, वो सब सॉल्व होने लगते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि 7th हाउस क्लियर है, और कितने लोग यूनिवर्स से ये बोलना चाहते हैं कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ, मुझे 7th हाउस के बारे में पता चला है, और मैं लोगों को ये बता सकती हूँ कि आपकी नक्षत्र नाड़ी में 2711 से कम निगेटिव नंबर ज्यादा है, तो आपको रेमेडीज करना चाहिए। आपके मैरिज लाइफ अगर सही है तो फिर नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको उसके बारे में बताकर। और कितने लोग इसको एज अ जॉब करियर बना के अर्न करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं मनी को लाइफ में, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। और कितने लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस रिस्पॉन्स। इंडिया स्टैटिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे कि सर्वे कंडक्ट हुआ था जब, तो 5 लाख पीपल ही थे जो 2023 में 53.8% ही रिस्पॉन्ड किए थे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन अभी चैटिंग 39% लोग फोन पे ही कंसल्टेशन ले लेते हैं। तो एवरेज मंथली सैलरी अभी एस्ट्रोलॉजर की 32,500 चल रही है। पर आप
आराम से 20 to 50,000 कमा सकते हो इसमें। अभी आप अगर देखोगे तो इंडिया ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी मार्केट में से 1.5% ही ऑनलाइन चल रहे हैं, जो 2024 में सर्वे में आया था। तो सोचो अभी 1.5% में इतने लोग कमा रहे हैं, तो 2030 तक में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ जाएंगे मार्केट में। और नेक्स्ट 2 ईयर में तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएंगे और घर से ही कमाने लगेंगे। 2 साल में तो और बढ़ जाएंगे। सो आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई वांट टू हेल्प, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट मनी। टाइप इन चैट बॉक्स, आई हैव गॉट दिस आंसर। अब आप अर्न कैसे करोगे? अपने पर्सनल क्लाइंट बनाओगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना बिजनेस को बारे में प्रोफाइल में डाल के। और आप कैसे किसी भी प्लेटफॉर्म हो गया, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, तो अभी यूट्यूब हो गया, तो आप उस पे अपने बारे में प्रोफाइल में डालकर अर्न कर सकते हो। पहले आपको कस्टमर मिलना चाहिए, और ये एक बार में तो बिल्कुल नहीं होगा, बट आप धीरे धीरे जब आप डेली एक एक पोस्ट डालोगे तो आपको कस्टमर मिलने लगेगा, और धीरे धीरे आपका छोटा अमाउंट से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। अब एक छोटा कैलकुलेशन है कि अगर आपको महीने मिनिमम 1,000 to 2,000 रुपीज आप रखो एक कंसल्टेशन के। मान लो 30 डेज में आपको 30 कंसल्टेशन नहीं भी मिलता है, 12 प्रिडिक्शन ही कर पाते हो, तो आसानी से आप 12,000 तो कमा ही लोगे। और सेकेंड मंथ में भी अगर इतना ही रहा तो 20,000 2 महीने में तो हो ही जाता। तो कितने लोग रेडी हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। अब आप कैसे सीखोगे ये एस्ट्रोलॉजी? कोई आप, इफ एनीवन हेल्प मी दैट्स हेल्प मी अ लॉट। अगर आपको कोई सिखा दे तो आप आसानी से सीख सकते हो। और इस मास्टर क्लास पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जरूर समझे होंगे कि 7th हाउस मैरिज के बारे में है। मैरिज होने के लिए 7 to 11 नंबर्स होना बहुत ही जरूरी है। और उसके निगेटिव नंबर अगर आए हैं 1, 6 और 10, सॉरी 12, तो वो सब अगर है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। और उसके लिए आपको रेमेडीज देना पड़ता है, वो रेमेडीज करके आप मैरिज लाइफ को बेटर बना लेते हैं। तो इतना तो लोग जरूर इस मास्टर क्लास में सीखे होंगे। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट में है कि जब आपके पास पूरा दिन है तो सिर्फ आवर मास्टर क्लास ही क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसा कोई थ्योरी नहीं है। और स्पेशल अपॉर्चुनिटी है आप लोग सबके लिए, आराम से घर बैठे 30 to 50,000 मंथली कमाने के लिए इस कोर्स को सीखने के बाद। या तो आप किसी ऐसे से एस्ट्रोलॉजर से सीखो जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, या फिर आप खुद समझो इस मास्टर क्लास के बाद कि आप कितना खुद से सीखे हो। ये मेरा इंस्टाग्राम पे है अकाउंट एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं और मेरे कस्टमर कितने हो सकते हैं। मेरी फोटो है इसमें। और इस कोर्स को ज्वाइन करने पे आपको 10 बोनसेस ऑफर होगा, जिसका कॉस्ट 20,000 है, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी अभी ज्वाइन करने पे। जिसमें पहला होगा मंत्रा रेमेडीज, सारे प्रॉब्लम्स की रेमेडीज दी जाएगी। पामिस्ट्री कोर्स सिखाया जाएगा। न्यूमरोलॉजी कोर्स सिखाया जाएगा।
जेमस्टोन रेमेडीज बताया जाएगा, और फर्स्ट थ्री ज्वाइनर्स की फ्रीक्वेंटली रीडिंग होगी। अगर आप अभी इस कोर्स को ज्वाइन किए तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दूसरा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कौन से कलर का डेली वेयर करना है क्लोथ, वो आपको बताया जाएगा। पीडीएफ ऑफ केपी चार्ट टेबल आपको दिया जाएगा। चेरिस डिवाइन, जिसमें आपको सारे इवेंट के नंबर होंगे। जैसे मैंने आपको एक केपी चार्ट का डिटेल मैरिज का दिया, वैसे ही आपको सारे 12 हाउसेस के केपी चार्ट टेबल में मिलेंगे। फिर चेरिस डिवाइनिटी कैलकुलेशन, नो योर ईस्ट डे। ईस्ट डे अगर आप जान लेते हो अपने बारे में, तो लाइफ की कितने भी बड़े हर्डल्स हो, कि आप मरने मराने पे हो और उनकी पूजा आप डीटी अपने डीटी इष्ट देव को जान के करने लगते हो, तो वो आपके पीछे हमेशा खड़े रहते हैं आपको मदद करने के लिए। लकी डे कैलकुलेशन, आपका लकी डे क्या है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड जॉडियक साइन बेस्ड रहेगा, वो आपको बताया जाएगा। और आपके लकी प्लान्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जॉडियक साइन के अनुसार, वो आपको फ्री कोर्स दिया जाएगा। मॉड्यूल 1 में स्पेशल चक्रा रेमेडीज दिए जाएंगे टू हील ऑल वैल्यू ऑल योर प्रॉब्लम्स। उसकी कीमत है 5000, जो आपको मैं फ्री दे रही हूँ। इसमें 7 पावरफुल मंत्रास और मेथड ऑफ रीडिंग पावरफुल मंत्रास, ये सब सिखाया जाएगा, कैसे रीडिंग करते हैं मंत्रास को, क्या मेथड है। दूसरा, इसको करने से क्या बेनिफिट मिलता है, और कैसे ये लोगों की डिजायर्स को पूरा किए हैं, और ये बेनिफिट क्या है, वो सब मंत्रास के बारे में आपको सिखाया जाएगा। मॉड्यूल 2 में स्पेशल पामिस्ट्री कोर्स में आपको इंटरप्रेट करना, ये बताया कि लाइन शेप्स और फीचर्स किसके हाथ में कैसे हैं, और उसको कैसे देखकर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे आप। किसी के पर्सनालिटी के बारे में आप लाइंस को देखकर सीख पाएंगे कैसे होते हैं वो। मॉड्यूल 3 में है स्पेशल न्यूमरोलॉजी कोर्स, इसकी कीमत 3000 है, जो आपको फ्री दी जाएगी। इसमें इंट्रोडक्शन होगा नंबर्स का, और नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक 0 to 9 क्या है वो आप सीखोगे। हाउ टू कैलकुलेट योर लाइफ पाथ नंबर, आपका लाइफ पाथ नंबर ही होता है जो आपको लाइफ में चला रहे होते हैं, उस नंबर के बारे में आप सीखोगे। एंड डेस्टिनी नंबर और इम्प्लीकेशन उसके क्या है वो आप सीखोगे। एनालाइज कैसे कर सकते हैं हम इस नंबर को हमेशा लेटर्स में, वो आप सीखोगे। एंड अंडरस्टैंड द लोशो ग्रीड एंड देयर सिग्निफिकेंस, लोशो ग्रीड से आप वो सब कर पाओगे और जान पाओगे कि ये सब मेरे लाइफ में है, और जो नहीं है उसको कैसे आप अपने लाइफ में लाओ। जेमस्टोन रेमेडीज आप देखे होंगे, जिसकी कॉस्ट रेमेडीज आपको जिसकी कॉस्ट 2000 है, तो आपको फ्री दी जा रही है। कि जेमस्टोन रेमेडीज क्या है और उनके अफिक्शंस क्या हैं, ये कितने इफेक्टिव होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और कौन से स्टोन लकी हैं सारे जॉडियक साइन की, वो आपको सिखाया जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल होता है। जेमस्टोन किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए वो भी जानना जरूरी है, वो आप सब सीखोगे। लकी कलर्स, किन के लिए कौन सा कलर लकी है, वो आप, जो 1000 रुपीज की वैल्यू है आपको फ्री दी जाएगी। तो हाउ टू नो योर लकी कलर्स अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी, वो आप सीखोगे। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। एंड केपी एस्ट्रोलॉजी चार्ट मैंने बताया, जिसमें सारे इवेंट्स के डिटेलिंग नंबर्स रहेंगे, जो 1000 रुपीज की है, जो आपको फ्री दी जा रही है। देन ईस्ट देव, आप अपने बारे में जानोगे आपके ईस्ट देव कौन है, जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज, जो आपको फाइन, जो आपको फ्री दी जाएगी। नो योर लकी डे, डेट ऑफ बर्थ इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू कैलकुलेट योर लकी डे आप वो सीखोगे। देन नो योर प्लान्स, आइडेंटिफाई योर प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर zodiac साइन, वो आप सीखोगे कैलकुलेट करना। देन कुंडली एनालिसिस में करूंगी, जो अभी टॉप 3 ज्वाइनर्स होंगे उनकी जो इसकी कॉस्ट होगी 1000 रुपीज, को फ्री दी जाएगी। वीडियो और पर्सनल मेंटरशिप लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग
वीडियो मिलेगी हर क्लास की। वीकली लाइव सेशन और लाइव लर्निंग रहेगा। प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। 15 डेज का ये कोर्स है और 1 ईयर का एक्सेस रहेगा। और अगर आप कुछ मिस करते हो इस बीच तो आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। केपी एस्ट्रोलॉजी मास्टरी का कोर्स होता है टोटल 15,000 रुपीज मेरे कोर्स का प्राइस है। लेकिन अभी अगर आप क्विक डिसीजन लिए और विद इन 30 मिनट्स ज्वाइन करते हो तो 10,000 ऑफ करा जाएगा। और अभी के लिए सिर्फ उसकी कॉस्ट 5,000 रुपीज है मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स की। और अगर आप 2 या 3 डेज करते हो तो 20,000 की हो जाएगी, कल करते हो तो 15 की हो जाती है, और आज आफ्टर 30 मिनट्स ये 10,000 की हो जाती है। तो अभी प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी whoever is interested। वन मोर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि who want to be a part of this beautiful community but they have not money right now, जिनके पास अभी फाइनेंस प्रॉब्लम हो रहा है कि आप फुल पेमेंट 5,000 नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ 3,000 रुपीज पे करके भी सीट को लॉक कर सकते हो। तो आपकी ये फर्स्ट 3 बुकिंग में भी काउंट किया जाएगा। यहाँ गूगल पे मेरा फोन नंबर है, आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो। ये मेरा यहाँ पे मेरी यूपीआई आईडी दी हुई है, उस पे कर सकते हो और अपने सीट को लॉक कर सकते हो। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और ऑफर्स अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज गिव मी योर फीडबैक एंड हाउ मेनी वांट्स टू ज्वाइन दिस कोर्स। इसमें आपको इतने सारे कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं एंड मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोग पे कर रहे हैं। थैंक यू एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो whoever has joined, for them, hey everyone, now you have become a part of this academy and registered very well. And here you will get proper guidance about the KP astrology that I guarantee you for sure. Thank you. Still, some are paying. Thank you so much. And I'm very happy to see this response. So, take care everyone. And अभी 30 मिनट का आपके पास टाइम है, आप सोच लो, फिर आपको ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ ऑल्सो सो मेनी आर पेइंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑन 7th May। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।